मैं बताऊं, हिस्टोरिकल स्कूल इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ एनालिटिकल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल कहता है दैट यू एनालाइज द लॉ, and by analyzing the law you will come to a situation where you will understand what law is. Law as it is, positive law which is laid down as it is, that is the main perspective of the analytical school of jurisprudence. Whereas if we talk about the historical school, it says that law evolves with the evolution of the society, meaning that as the society grows, the law also grows along with the society. Meaning that if we have, let us say, changes which are coming in the society, parallel changes will also happen with the law, otherwise law will not be relevant. What I have said, if the society is changing to some extent, there will be parallel changes in the law also to the same extent. Meaning what? Meaning that as far as a historical school is concerned, is law as it is or is law continuously changing? Continuously changing. Because what will happen is the society will keep on changing, and if the society changes, that means there are variations in the moral values, there are variations in the circumstances, and there are variations in the conditions of the society. Similarly, law will also try to keep up with these varying conditions, and in a similar fashion law is also going to change as and how the society keeps on varying, as and how the society keeps on changing. I hope you are able to understand this, right? See, we have one more entry and there will be more. What I am trying to say is that law keeps on changing with the society. But why is it called the historical school? Then why is it not called the sociological school if it is actually dependent upon the changes in the society? Two things that you need to understand. Sociological school is not dependent upon changes in the society per se. Secondly, why is it called the historical school? You tell me. I'll ask you a question. Are we studying the law of the past, or are we studying the law of the present, or are we studying the law of the future? Tell me. Are we studying the law of the past, or are we studying the law of the present, or are we studying the law of the future? Law of the present, yes. Present, yes. Past, yes. मैंने ये नहीं बोला हिस्टोरिकल में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, टीपीए, में उसकी बात कर रहा हूं. मैं हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड ही बात नहीं कर रहा हूं. अरे मैंने पूछा पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? हाँ, प्रेजेंट. हम लिए जूरिस्प्रूडेंस की बाकी क्लासेस हैं? चलो ठीक, कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सेस तो सबके पास है, कर लेना, ठीक है. वी आर स्टडिंग द लॉ ऑफ द पास्ट. मुझे बताना प्रेजेंट का लॉ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ द प्रेजेंट? लॉ विच इज ऑपरेटिव right now or made right now. Operative right now. So we are studying the law which is operative right now, or we are studying the law which has been made in the past and it has become operative then. Basically law इस टाइम पे बनाया गया, इस टाइम पे एनफोर्स करा गया, और वो तब से लेकर जब तक उसको रिपील नहीं करोगे. अब आप यहां पर लॉ को पढ़ना शुरू करते हो, तो आर यू स्टडिंग द लॉ ऑफ द प्रेजेंट और आर यू स्टडिंग द लॉ ऑफ द पास्ट? पास्ट. बिकॉज हाउ विल लॉ एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट? ओनली व्हेन इट इज मेड इन द पास्ट. नंबर वन. सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू स्टडी द लॉ ऑफ द फ्यूचर? Can you study the law of the future? Is it possible
in any school of thought, can you study the law of the future? The answer is no, because you don't know what the law will be in the future. Can you guess? Yes. But can you know? You can't know that what will be the law of the future. Meaning what? If at this particular point we want to study law and we want to understand how the law developed, ultimately we have to go back. Why I am so aligned myself also with the historical school is that you will ultimately have to go back and see how the law was made here. At this particular point of time, how the law was made here, only then you'll be able to analyze the law. And you can't stop here. You can't stop here. You'll have to go further back and see what were the conditions which ultimately led to the making of this law. How the society was structured in this time frame so that ultimately law was this. Are you able to understand this? So the main perspective of historical school is this particular time period. That how exactly the changes happened in the society. Probably there was already an existing law which was changed to this, or probably there was no law at all and a law was made. अब ये आर्म्स एक्ट बना, कब बना? जब हमें लगा कि रैम्पेंट यूज ऑफ आर्म्स एंड आर्मिनेशंस हो रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से पहले आईपीसी में प्रोविजंस थे, पर हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसलिए बनाना पड़ा ताकि हम उन प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रक्चर्ड कर सके, एक सेपरेट लेजिस्लेशन हो हमारे पास. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्यों हमें पार्टनरशिप और सोगा को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करना पड़ा? क्या रीजन? What was the need to make a separate sale of goods act when it was already there in the Indian Contract Act? क्या जरूरत थी बताओ? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसी में अमेंडमेंट नहीं कर सकते? हाँ नहीं, जब ऑलरेडी मेरे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 ऑनवर्ड्स प्रोविजंस है, तो मैं अलग से उसमें से निकाल के सोगा क्यों बनाना चाहूंगा? व्हाई विल आई मेक सोगा सेपरेट जब आई ऑलरेडी हैव? इसमें जो चेंजेस करने, एडिशंस करने कर लो, अलग करने की क्या जरूरत थी? हाँ, रेमेडी जल्दी मिल जाए. यहां नहीं मिल सकती थी, नहीं इधर नहीं मिल सकती थी. माय क्वेश्चन इज दिस, क्यों यहां स्लो क्यों चलेगा? सोगा जो लॉ है सेपरेट बनाया हुआ, अभी देखो इसी से हम बड़े अच्छा पॉइंट उठाया मैंने भी और आपने भी. सोगा जो हमने सेपरेट लॉ बनाया, वेयर डज इट डिराइव इट्स वैलिडिटी फ्रॉम? कॉन्ट्रैक्ट्स. मैं बात समझ गया आपकी, 100% समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने सोगा को एक स्पेशल दर्जा दे दिया. मैं पूछ रहा हूं क्यों? 1 सेकेंड. उन्होंने कहा कि स्पीडी रेमेडी मिलेगी. अभी सोगा में आपके पास रेमेडी क्या है डैमेजेस के लिए? कहां जाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट में. राइट्स एंड लायबिलिटीज जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिटरमाइंड है, वो पहले कहां डिटरमाइंड थी? बेसिकली सब कुछ तो था वही, एज इट इज उठा के हमने अलग कर दिया उसे, विद माइनर वेरिएशंस. यहां पर भी हो सकती थी माइनर, एक्सट्रीमली माइनर वेरिएशंस. ऑलमोस्ट नंबर ऑफ सेक्शंस भी उतने ही हैं, शायद कम हुए सोगा. तो अब स्पीडी रेमेडी, कौन सी स्पीडी रेमेडी? सोगा के लिए भी जाओगे कॉन्ट्रैक्ट में ही, कॉन्ट्रैक्ट और सोगा दोनों के लिए अल्टीमेटली जाओगे सीपीसी के पास, एसआरए के पास. तो रेमेडी तो यहां से मिलेगी. ये तो सिर्फ राइट्स डिटरमाइन कर रहा है, सब्सटैंटिव लॉ है. तो सोगा अलग क्यों बना दिया हमने उठा के? व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग और ब्रिंगिंग सोगा सेपरेटली? देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तो प्रोविजंस आईपीसी में थे. हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि सारे प्रोविजंस आईपीसी में नहीं थे. लेकिन जब आप सोगा को एनालाइज करते हो तो सारे के सारे तो थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. एवरीथिंग वाज देयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो अलग क्यों लेकर आए हम सोगा को? कैसे कौन सा वेरिएशन नहीं था? पहले तो मुझे आप बताओ, ये बोल रहे हो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो देखा है कभी? तो फिर आप बता ही नहीं सकते, तभी आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीजें वही थी, एग्जैक्ट वर्बैटम. क्यों कर दिया हमने सोगा अलग? यस, पहली बात तो बताओ, आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सोगा?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सोगा के प्रोविजंस थे वो कभी देखे हैं? पता पढ़ा ही नहीं, छोड़, कोई बात, देखकर आना कभी प्रोविजंस, आपको समझ आएगा कि हमने अलग करा क्यों था। मेरा कारण आपको ये बताने का क्या है, मेरा कारण सिर्फ इतना है कि आप ये समझिए दैट अल्टीमेटली सोसाइटी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंजेस, दैट इज व्हाई समटाइम्स लॉ आल्सो चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, वी नेवर had sexual harassment guidelines. Supreme Court made those guidelines, and then for the first time we had law which was related to prevention of sexual harassment of women at workplace, जो कि आईपीसी में नहीं था। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आईपीसी में बाद में ऐड हुआ है, याद हो 354 ए बी सी डी, ये सब बाद में ऐड हुआ है, राइट? नहीं था वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कुछ भी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, protection order, residence order, monetary order. These are new laws. POCSO, specifically rape against children, was not there in IPC. We made more stringent laws. We defined sexual assault, child pornography, etc. What I'm trying to say, these are new laws, but sometimes old laws are also carved out or broken apart into separate laws. Why do we have CPC? You are all saying कि सोगा इसलिए बना दिया स्पीडी, okay. सीपीसी इतना बड़ा है हमारे पास, इससे बड़ा था पहले, और उतना ही हमने उसको ब्रेक करके ऑर्डर्स और रूल्स में, ऑर्डर्स और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी भी हम सीपीसी को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे? हम सीपीसी में से, मैं आज आपको बता सकता हूं, हम सीपीसी में से 3 सेपरेट लॉज निकाल सकते हैं। फ्रॉम सीपीसी आई कैन मेक 3 सेपरेट लॉज। नंबर 1 विल बी रिलेटेड टू प्लीडिंग्स, नंबर 2 विल बी रिलेटेड टू प्रोसीजर, number 3 will be related to appeal. I can make 3 separate laws out of the same CPC. Why aren't we doing it to make it easy, speedy, better, specific? क्यों नहीं कर रहे हम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से पार्टनरशिप भी निकाल दिया, सोगा भी निकाल दिया, काहे बात के लिए निकाला? क्या रीजन था उसका? Try to find out. Just read it once. What I am trying to say, ultimately the law changed. And this law always keeps on evolving and changing with the changing needs of the society. आप समझ रहे हो मेरी बात को? And that is why the historical school says that each and every society has a pulse. हर एक सोसाइटी की एक पल्स होती है। उस पल्स के हिसाब से और उस चेंजिंग नोशन के हिसाब से हमारा जो लॉ है वो भी चेंज होता रहता है, और लॉ बनता भी रहता है। बट इट इज ओनली एंड ओनली हाउ हिस्टोरिकली द सोसाइटी हैज चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड इन विच ईयर? In which year was the Bill of Rights introduced in the US Constitution? It happened in the year 1791, right? And they introduced the Bill of Rights in the United States Constitution. Who are the people of the United States of America? They're all Europeans. They're all those settlers who actually went to that particular area. They crossed the sea and they went to that particular area because here there were a lot of what? There was a lot of Catholic dominance. Lot of people were wanting and sending, the Pope was sending missionaries, religious missionaries, to get people to know about Christianity, and they were enforcing Christianity also to a great extent. Plus, there was decline of trade because of the rise of the Ottoman Empire, also, a lot of things. So they migrated to this place. They're all Europeans who have settled there. The Native Americans, they are the Red Indians who were already there, settled there. They were the original tribal people over there. These Europeans, they went there, and now it is called the United States of America. और किस किस तरीके से उन्होंने, जब मैं आपको डार्क एजेस समझाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा किस किस तरीके से उन्होंने अपने लॉ को फ्रेम करा, which is also perspective of historical school. There is something known as the Boston Tea Party.
If somebody has heard about it, Boston Tea Party. What is it? क्या हुआ था? नहीं, ठीक कह रहे हो, क्या कहा था, ये करा क्या था, ये तो बताओ। नहीं नहीं, उन्होंने बेसिकली जो चाय थी वो शिप्स के अंदर घुस की और सारी की सारी समुद्र में डाल दी, जो चाय की पत्तियां थी। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, जो भी हो रहा था छोड़ो। हाँ हाँ, और उसकी वजह से एक टी एक्ट बन गया। What I'm trying to say, there were changing needs of the society, and therefore there were changing laws also in that particular society. I am saying historical school is very clear about one thing, that as and how the society will evolve, we will keep on changing the law, we will even keep on making new laws. ठीक है, क्या आपको थोड़ी सी बात आई थिंक समझ आ रही है? राइट, अब आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए इन द हिस्टोरिकल स्कूल। राइट डाउन, the Thebaid of Heidelberg अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, अगर लॉ को कंटिन्यूअसली चेंज करना है और लॉ अगर कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना चाहता है, तो कोडिफाइड लॉ बेटर रहेगा या अनकोडिफाइड लॉ बेटर रहेगा? बेटर क्या रहेगा? हाँ, अगर लॉ को कंटिन्यूअसली चेंज करना है विद द एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, सो व्हाट इज बेटर? इज इट बेटर टू हैव अ कोडिफाइड लॉ और एन अनकोडिफाइड लॉ? बेटर क्या रहेगा? अनकोडिफाइड बेटर रहेगा। Of course, an uncodified law will be better. Why? Because if we'll have an uncodified law, it will be easier to mold and change. Like, for example, there is an unwritten constitution in the United Kingdom. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मुजवानी कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कंपाइल करके एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई। जैसे हमारे पास एक बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज कंपाइल्ड इनटू वन प्लेस। दे डोंट हैव अ कंपाइल्ड बेयर प्रोविजन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द ओनली थिंग। ऐसा नहीं है कि वहां लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काफी हद तक लिखित में है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा है कि जो पार्लियामेंट ने कह दिया, आप सोचो, whatever the lawmakers decide, it cannot even be challenged in the court. आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी लॉ को डिक्लेयर ही नहीं करवा सकते, जो पार्लियामेंट ने कह दिया, दैट्स इट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द यूनाइटेड किंगडम। जैसे हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, यूनाइटेड किंगडम में ऑलमोस्ट एब्सेंट है। सो दे ऑल्सो हैव लॉज विच प्रोबेबली नीड चेंजेस ऑल्सो। So is it better to have an uncodified law or a codified law? Uncodified. Because law automatically बहुत easily, जैसी सोसाइटल कॉन्शियंस चेंज हुई, पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया लॉ को, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दी, फिर चेंज कर दिया। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, क्या होगा? हाँ, अच्छा, आप करण हो? मास्क उतारो एक बारी, वो तो शुभम दिख रहा है? चलो एक काम करो, अपने रजिस्टर में लिखो, अब ब्रैकेट्स ओपन, Thebaid was the chairman of the codification commission. Thebaid was the chairman of the codification commission. Thebaid was the chairman of the codification commission. Brackets closed.
So the chairman of the codification commission of Heidelberg, ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया ना आपने, ठीक है, had suggested, ब्रैकेट क्लोज के बाद had suggested the codification of laws, the codification of laws, and the historical school was opposed to it. Codification of laws and the historical school was opposed to it. And the historical school was opposed to it. Full stop. Of course, if the laws will remain uncodified, it will become easier for amendments, easier for changes with the evolving society. ठीक है? Second point. Historical school was also opposed. Historical school was also opposed. Historical school was also opposed to the idea of. Historical school was also opposed to the idea of universalization of law. Universalization of law. Universalization of law. Full stop. Universalization का मतलब क्या हुआ? What do we understand by universalization of law? अच्छा, हिस्टोरिकल स्कूल ऐसा मान रहा है कि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लॉ। बिल्कुल ठीक बात, हाँ बिल्कुल ठीक बात, एक ही लॉ सबके लिए ना हो। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? सी अंडरस्टैंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लॉ बेसिकली मींस दैट यूके हो, यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सब जगह के लिए सेम लॉ। समस्या यह है कि सब जगह के लिए सेम लॉ नहीं हो सकता। कारण बहुत सिंपल है। हिस्टोरिकल स्कूल का कहना है कि लॉ चेंजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, चेंजेस ऑफ सोसाइटी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ वन प्लेस द सेम एज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑफ अनदर? नो। हर जगह की अपनी पेक्यूलियर कंडीशंस हैं, हर जगह की अपनी पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, और हर जगह की अपनी पेक्यूलियर सॉल्यूशंस। So what I'm trying to say is, historical school says that law evolves or changes with the evolution and changes in the society. क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल है ना, वो हिस्ट्री देखकर बता रहा है कि अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग समस्याएं रही हैं, और तब उन्होंने ये बात बोली है कि हमने जब हर तरफ देखा तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझ आया कि एक लॉ हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यूरोपियन हिस्ट्री अलग है, मैक्सिकन हिस्ट्री अलग है, श्रीलंकन हिस्ट्री अलग है, इंडियन हिस्ट्री अलग है। इंडिया में भी साउथ इंडिया की हिस्ट्री अपने हिसाब से पेक्यूलियर है। आप देखो, इंडिया में जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो फ्रॉम अबव द रिवर तुंगभद्रा जाना बड़ा मुश्किल था। आप समझो, शुरुआती टाइम पीरियड में तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस करके एम्पायर को एक्सपैंड करना। व्हाई डोंट वी हैव चोला आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया? इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस। हाउ विल यू टेक आउट डेंस फॉरेस्ट को? कैसे काटोगे? आयरन टूल्स से। आयरन टूल्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल से। अब तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जाने में ही बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ऊपर वाले ऊपर थे। अब हमारे पास जैसे रजवाड़ा महल हमारे राजस्थान में, पूरे इंडिया में क्यों नहीं है? पूरे इंडिया में क्यों नहीं है? Why is the Gwalior architecture different? The reason is this: they could not become a central empire for the entire nation. What I'm trying to say is, within societies also there are different situations, different conditions. जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था कि जो जैसे बावलियां होती हैं जहां पे आप पानी भरते हो, जो जैसे समझ रहे हो आप किसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो इस तरीके की जो चीजें होती है, कुएं होते, उसमें स्टेप्स होते थे पहले। मैंने आपको याद है बताया था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में 7 स्टेप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में 5 स्टेप्स हैं। क्यों? याद है? याद है?
ये बताया था, याद है? क्या बताया था, याद है? हाँ, अच्छा, और जहां 5 स्टेप्स होते हैं वो? वेरी गुड, वेरी गुड। उन्हीं 5 नक्षत्रों में से जो व्यक्ति बॉर्न होगा उसी व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर में व्हाट आई एम सेइंग इज एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन पेक्यूलियर कंडीशंस, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इंडियन कंटेक्स्ट इसलिए देता हूं आपको ताकि आपको रिलेटेबल लगे। मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल स्कूल में बताऊंगा भी। What I'm trying to say is you can't have a universal law for everybody. You cannot have a universal law for everybody. जैसे साउथ इंडिया में they believe they should have 5 steps. You can't have 5 steps in North India because they think that because the sun god Surya Dev he has 7 horses. आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? समझ रहे हो? इसी पॉइंट में लिखो आप, फुल स्टॉप। According to historical school, different societies have their own peculiar conditions, comma, peculiar problems, have their own peculiar conditions, comma, peculiar problems and varying conditions, and therefore and properly लिखा करो, and therefore the laws evolving in different societies will also be different. Full stop. Hence law cannot be universal. Hence law cannot be universal. Full stop. समझ आ गया? Sure? Great. देखो, तभी तो हमारे पास इंडिया में प्रॉपर ब्रॉन्ज एज थी ही नहीं। इंडिया डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ब्रॉन्ज एज। वाई? ब्रॉन्ज कैसे बनता है? अरे यार, सिंपल क्वेश्चन, ब्रॉन्ज कैसे बनता है? हाँ, एलॉय है, किसको मिला के बनता है? सिल्वर, टिन था ही नहीं हमारे पास। टिन थोड़ा बहुत जो आता भी था अफगानिस्तान। हमारे पास प्रॉपर ब्रॉन्ज एज थी ही नहीं। अब देखो, ब्रॉन्ज आइडल्स नहीं है हमारे पास ज्यादा। अब नहीं, मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। पेलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक टाइम पे देखो है ही नहीं। पेलियोलिथिक में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब तो हाँ, सॉरी, पत्थर मतलब, हाँ, स्टोन एज थी, तब तो मेटल था ही नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ रहे हो? सो एवरी सोसाइटी इवॉल्व्स, एवरी सोसाइटी विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। उस दिन मैंने आपको ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में बताया था, तो तब भी मैं आपको बता रहा था कि यहां पे जो अर्ली ऋग्वेदिक एज थी वहां पे ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी थी, और यहां पर आकर यहां कौन था? हाँ, अर्ली मेडिवियल एज पर भी ये क्या रिटर्न्ड? डेमोक्रेसी रिटर्न। एंड हियर मौर्यन एज, here Gupta age. What I'm trying to tell you here is that law evolves with the changing society. So there cannot be universalization of law because each society in itself is different. ठीक है? फोकस इस पे मत करो कि कौन सा जूरिस्ट है, किसने क्या कहा, एक्सेट्रा। फोकस ऑन व्हाट इज द पर्पस ऑल्सो बिहाइंड इट। तो दो चीजें होंगी, एक तो ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। जब याद आएगा, अच्छा ये व्यक्ति उस स्कूल ऑफ थॉट का है, तो इजी हो जाएगा याद करना आपके लिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट,
historical school also developed as a reaction against the rationalism, of the analytical school. Rationalism of the analytical school. Meaning what? Meaning very clearly that historical school has developed as a reaction to the rationalism of the analytical school. If I don't tell you what is rationalism, can you tell me the rationalism of analytical school? कुछ आपको दिमाग में आता है? What can I mean by rationalism of analytical school? Leave your phone, please. What is the meaning of rationalism of analytical school? Purpose behind law? That school rational से purpose निकाल रहे हो. एक होता है rational, एक होता है rational. तो पर्पस तो इसे कहते हैं. मैं तो रैशनलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं. ये पर्पस है, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं. तो वर्ड से भी जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो तो देखो वर्ड कौन सा है, आगे बताओ. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रैशनलिज्म? लॉजिकल एनालिसिस. मीनिंग व्हाट? Basically viewing or interpreting the law with logic and reason, right? Historical school is opposed to viewing law with logic and reason. It is against rationalism. Historical school कहते हैं लॉजिक रीजन मत लगाओ. लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल एनालिसिस से लॉ समझ नहीं आएगा. सोसाइटी को देखने से लॉ समझ आएगा. क्या मतलब इस बात का? लिखिए, फुल स्टॉप, आगे लिखो. Historical school talks about spontaneous development of law. Historical school talks about spontaneous development of law. Talks about spontaneous development of law. Full stop. अब spontaneous development of law का क्या मतलब? That law develops spontaneously. That means at that moment, when the situation arises, law develops. हाँ? सोसाइटी जैसा है उसी हिसाब से स्पॉन्टेनियसली लॉ चेंज होता रहेगा. आज सोसाइटी के मान लो मॉरल कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है और आज सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज में बदलाव आ जाता है. आज सोसाइटी कुछ और सोचना शुरू कर देती है या किसी और चीज को सही मानना शुरू कर देती है. What will it ultimately mean? It will ultimately mean that law is also going to change according to historical school. There will be spontaneous growth of law. It is not that we apply our logic, rational and reason and then we develop the law. No, there will be spontaneous growth of law. और अगर spontaneous growth है तो आपका लॉजिक किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बना लिया, स्पॉन्टेनियसली कुछ और खड़ा हो गया आकर. What we are trying to say is there is spontaneous growth of law. It is not logical analysis of law that is going to tell us what the law is. Rather, law is growing spontaneously. So you have to understand the historical perspective of that particular society. जब तक आप उस सोसाइटी की कंडीशंस को नहीं समझोगे, आप दो तरीके से व्यू कर सकते हो. एक तो आप देखोगे द लॉ विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो लॉ ऑलरेडी है, उसको आप पीछे जाकर देखोगे, राइट? और अगर आपको प्रेजेंट लॉ की जगह पास्ट लॉ को एनालाइज करना है तो आप ये देखोगे अगेन पीछे जाकर कि वो लॉ बेसिकली बना कैसे था. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? अल्टीमेटली द पर्सपेक्टिव इज दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ लॉ. लॉ स्पॉन्टेनियसली ग्रो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. So if the needs of the society are changing, law is also changing. So you are applying your logic, okay, we have to go this way. Again, spontaneous growth हो गई, different. क्यों?
because we thought we'll go this way. Again, spontaneous growth हो गई क्योंकि we thought we'll go this way. So what we are trying to say is law develops spontaneously and therefore rationalism has no place in historical school. ठीक है, next point. Historical school, तो सबसे पहले तो historical school was against codification, it was against universalization of law, it was against rationalism. Fourth, historical school also developed due to the idea of nationalism. Historical school also developed due to the idea of nationalism prevailing in those times. Prevailing in those times. Full stop. जैसे those were the times of Napoleon etc. अब समझो इस बात को कि nationalism का मतलब क्या है? What do you understand by a nation? Nation का मतलब क्या है? What is the meaning of nation? Society? Anybody? What is the meaning of nation? Okay. See. कंट्री में और नेशन में ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ही फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर स्टडिंग इन द यूनाइटेड किंगडम, so can we say that your nation is United Kingdom? What I am trying to say is, अब आप 5 साल तक यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हो जाकर, तो आपकी नेशन यूनाइटेड किंगडम तो नहीं है. कंट्री में एंड नेशन में फर्क यही है. कंट्री इज डिफाइंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. योर कंट्री इज लिमिटेड टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. बट आपसे ये नहीं पूछते हैं यूनाइटेड किंगडम में कि what is the country that you are living in or which country do you belong to. वो आपसे पूछेंगे what is your nationality. Meaning what? Nation means feeling of oneness. That is the meaning of a nation. Nation का, for example, anybody points a finger at us as a nation, that finger is pointed against everybody, not just one individual. Somebody, for example, from outside the country troubles somebody, let us say in Madhya Pradesh. We don't say that it is Madhya Pradesh's problem. We say it is India's problem. It is our problem. There is feeling of oneness. That is the nation. Country is India, that is within the geographical boundaries. But nation is the feeling of oneness that you have. That is the meaning of nation. They are saying that historical school developed due to the idea of nationalism. Meaning जैसे आज भी हम कहते हैं मेक इन इंडिया. हमें कुछ भी बनाना है, हम इंडिया में ही बनाएंगे. नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, समथिंग विच स्ट्रांगली होल्ड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टुगेदर, दैट फीलिंग ऑफ वननेस इज कॉल्ड नेशनलिज्म. And historical school also developed due to nationalism. और मैं आपको बताऊं, अभी आपको दिखाता हूं एक चीज. Historical school developed due to nationalism, but it is not that nationalism is limited to the development of law. I'll tell you. Clear picture. See, this is the Rosetta Stone.
दिख नहीं रहा क्लियरली, दिस इज द रोजेटा स्टोन. Approximately how many language do you see here? Approximately how many language do you see here? None of these languages are known to you. I am just asking. Approximately how many scripts do you see here? हाँ? सब एक जैसा दिख रहा है? हाँ? 1, 2 एंड 3. इसमें से एक थी ग्रीक जो ऑलरेडी इनको आती थी. बाकी दोनों लैंग्वेजेस को नेपोलियन की क्योंकि मैंने बात करी तो आपको बता रहा हूं. ये देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या मिल रहा है. आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये मिल रहा है इसी रोजेटा स्टोन से. द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. एवरी प्लेस इज फॉलोइंग इट्स ओन लैंग्वेज, and because every society is following their own language, we don't bother about your language. हमें एक्चुअली में जरूरत नहीं कि हम फ्रेंच सीखे. क्यों सीखे हम फ्रेंच? हमें क्यों सीखनी है फ्रेंच? इंडिया में कौन व्यक्ति फ्रेंच ही में बात करता है? कोई करता है नहीं. हम फ्रेंच क्यों चाहते हैं? हमारी इंटरनेशनल मार्केटेबिलिटी बढ़े. हम अगर बाहर जाए तो लोगों को पता हो कि हमें फ्रेंच भी आती है तो हम कहीं पर भी इंप्लॉय हो सके. फ्रेंच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस. It is dominant in Canada also because it was a French colony earlier. आप लोगों को शायद नहीं पता चल रहा है ये बात. Canada was a French colony earlier. So इसलिए वहां फ्रेंच बहुत डोमिनेंट है कनाडा में. मैंडरिन, हम क्यों सीखे मैंडरिन? पीपल आर लर्निंग मैंडरिन जापानीज दीज डेज. क्यों? बिकॉज दे वांटेड इंटरनेशनल मार्केटेबिलिटी टू बी मोर. एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन लैंग्वेज. सी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. एक लैंग्वेज उन्हें आती थी, दोनों लैंग्वेजेस उन्होंने बाकी डिसाइफर कर ली फ्रॉम द रोजेटा स्टोन. मीनिंग व्हाट? Ultimately, it is not universalization. It is nationalism. Every place is developing its own language. So it is nationalism. And this was also brought by Napoleon. Anyway, अब आप next point लिखिए. Next point भी नहीं लिखो, बल्कि nationalism में आपको मैं एक और बात बतानी भूल गया. Nationalism का मतलब क्या है? That we take pride in ourselves. Whatever we'll make in India, meaning we want indigenous things to be brought up. Similarly, historical school says law is also indigenous. There is no universalization. The law is indigenous, meaning it is created for us by us. हम दूसरे लॉ को अडॉप्ट नहीं कर रहे. नेशनलिज्म की फीलिंग लाओ. Oneness, that means we will develop our own law and that law is going to grow with us. The law is indigenous. That was also same point में कहीं पर ब्रैकेट में चाहे लिख लो नेशनलिज्म के बाद. Law is indigenous. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब प्लीज. As and when society evolves, as and when society evolves, law also evolves. As and when society evolves, law also evolves. Full stop. There is spontaneous growth of law. There is spontaneous growth of law. There is spontaneous growth of law. ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं. नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज गिव द हेडिंग प्रीकर्सर्स टू हिस्टोरिकल स्कूल. मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्हीं की वजह से हिस्टोरिकल स्कूल एज इज काफी हद तक आगे बढ़ा. हिस्टोरिकल स्कूल के बनने से पहले यही लोग थे जो साइलेंटली एक तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल को डेवलप कर रहे हैं. मैं आपको सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं, उस सीक्वेंस को याद रखिएगा. कभी कभी हो सकता है आपसे वो सीक्वेंस प्रीलिम्स में पूछ ले. नंबर 1 इज मॉन्टेस्क्यू.
द मॉन्टेस्क्यू ऑल्सो गेव द, लिख लो साथ में ब्रैकेट्स में या नीचे लिख लो मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर्स, separation of powers, and he also wrote the book The Spirit of the Laws. The Spirit of the Laws. The Spirit of the Laws. 1689 to 1755. Then we have Edmund Burke. Edmund Burke. This is 1729 to 1797. Edmund Burke. Then we have Gustave Hugo. This is 1764 to 1844. ठीक है, ये है मॉन्टेस्क्यू. ठीक है, then we have Edmund Burke. He is Edmund Burke. कैसे विवेक जी, ठीक हो? Edmund Burke. Then we have Gustave Hugo. Gustave Hugo. ठीक है फाइन. अब मॉन्टेस्क्यू में लिखिए सबसे पहले, छोटी छोटी चीजें लिख पानी सर इन तीनों में आपको. मेन हम जाएंगे उस पे, सैवनी पे जाएंगे. बट सैवनी इज नॉट अ प्रीकर्सर, ही इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल. प्रीकर्सर मतलब पहले. ठीक है, दीज आर प्रीकर्सर्स टू द ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली, ये तीनों जो है. ठीक है, मॉन्टेस्क्यू लिखिए प्लीज. लॉज आर अ क्रिएशन ऑफ, laws are a creation of climate. Laws are a creation of climate. Climate मतलब वो वाला climate नहीं, climate मतलब pulse of the society, comma local situation, comma accident and imposture. Imposture, IMPOSTURE, and imposture. Imposture का मतलब willful deception. Imposture का मतलब willful deception. देखो मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहे हैं, लोकल सिचुएशंस, एक्सीडेंट. अब एक्सीडेंट कॉमन है या एक्सीडेंट उसी समय पे उसी टाइम होता है? कहने का मतलब laws are what? They are creation of climate. Climate और weather में बड़ा फर्क है. हाँ, and weather is for a particular moment. They are a creation of climate. क्या situations prevail कर रही हैं, right? They are a creation of accident. Basically हो सकता है accidentally in the sense बाय मिस्टेक ही किसी से लॉ बन गया, बट दैट हैपेंस एट दैट मोमेंट, राइट?
It is a creation of local situations, मतलब not universal at that particular point of time. And imposture meaning willful deception. हो सकता है जो रूलर हो वो सब्जेक्ट्स को डिसीव कर रहा है. What I am trying to tell all of you is that Montesquieu is talking about somewhere or the other historical school. वो कह रहा है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में, अब क्लाइमेट जो है, अब क्लाइमेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप शिमला जाओ और आपको मैं बोलूं कि शिमला का क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट एंड समटाइम्स देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ सनलाइट, अदरवाइज इट्स अ वेरी कूल एंड वेरी काम क्लाइमेट, राइट. आप ट्रेन पकड़ के शिमला जाओ, पता चले वहां पे घनघोर वर्षा हो रही है, तो आप कहोगे ना कि सर कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, तो मैं आपको कहूंगा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट एवरेजेस, एवरेजली क्लाइमेट वही रहता है शिमला में, बट जो बारिश हो रही है वहां पे दैट इज द वेदर. तो आप ये नहीं देखते क्लाइमेट फोरकास्ट, आप क्या देखते हो? वेदर फोरकास्ट. क्लाइमेट तो हमारा ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल ही रहता है पूरे भारत में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल रहता है, बट वेदर इज फॉर अ पर्टिकुलर डे, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. वो कह रहे इट इज अ क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट. क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है? अब अगर आप यहां पर देखो तो आपको लगेगा कि हिस्टोरिकल स्कूल से अलग जा रही है बात, पर हिस्टोरिकल स्कूल से अलग नहीं जा रही. उन्होंने कहा लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट. लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जैसी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उस हिसाब से लॉ बन रहा है. उसी में इंपोस्चर भी हो सकता है, यानी कि विलफुल डिसेप्शन भी हो सकता है. What I'm trying to say, historical perspective there. Next, Burke लिखो, Burke, Edmund Burke. स्टेटमेंट्स याद रखना, वैसे याद रह जाएंगी आई होप. एडमंड बर्क लिखिए, schemes should not be made for the future. Schemes should not be made for the future. Schemes should not be made for the future. कहने का मतलब laws should not be made for the future without assimilating lessons from the past. Without assimilating lessons from the past. Without assimilating lessons from the past. Full stop. वही हिस्टोरिकल स्कूल की बात कि जब तक आप पास्ट को नहीं देखोगे, सोसाइटी के चेंजेस, ट्रायल्स एंड एरर्स ऑफ लॉ को नहीं देखोगे, तो आप लॉज आगे बनाओगे कैसे? फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू बर्क, according to Burke, B-U-R-K-E, according to Burke, comma, law is a product of gradual organic process. Law is a product of gradual organic process. अब ग्रेजुअल ऑर्गेनिक प्रोसेस मतलब बड़ा सिंपल सा निकल के आता है. ग्रेजुअली, organically the law is evolving, it is changing. और बर्क हिस्टोरिकल स्कूल के हैं तो बात ऐसी ही करेंगे. नेक्स्ट, हुगो. गुस्ताव हुगो. Write down, in the earliest times to which authentic history extends, in the earliest times to which authentic history extends, comma, law will be found to have already a fixed peculiar character, to have already a fixed character peculiar to the people, fixed character peculiar to the people
like language, like language, like language, comma manner, manner, manner and constitution. Language, manner and constitution. समझ आया? समझ आया everybody? Yes or no? So everybody will have peculiar characteristics. Language will be different, manner will be different, constitution, building, making will be different. So therefore everybody, everywhere the law will also be somewhat different. Against universalization. Against universalization, वही तो बात कह रहा है वो. ठीक है? Now, please write. No, don't write. Let's take a short break. ठीक है? On a Sunday afternoon, you are studying jurisprudence. You deserve a break also. Take a break of 5-7 minutes.